Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. Now, most of you have posted your attempts in IBPSPO pre-examination. And one question is asked by many people. Sir, should I prepare for mains? Sir, should I prepare for mains? My answer to each one of you is yes, you should prepare for mains. But why I am saying so? This year exam is similar to 2017 exam. In 2017 also, exam was moderate to tough. This time also, exam is moderate to tough. Do you know what was cutoff in 2017? The cutoff was for SC 36, ST 28.5, OBC 42.25, General 42.75. Now some people are saying, sir, others have attempted 70 or more, 80 or more. I have attempted 65, 60, 55, 50. Should I prepare for mains? My answer is yes. If in 2017 a candidate with 42.75 marks can appear for mains, why can't it happen in 2020? So what will be the cutoff, that we will come to know when the actual result comes. But hope is alive. If it can happen in 2017, it can happen in 2018, it can happen in 2019 or earlier to that. I am helping the candidates since 2012. And my experience with the candidates is cutoff is not predictable. If somebody is telling that this will be the cutoff will be high, that means we are playing with the sentiments of the candidates. Normally, cutoff in pre of IBPSPO is low, normally. And if you take the data of various years, you will find it was very, very reasonable. So if you have attempted 50, even below 50, above 50, everybody should prepare for mains. Surprises will happen. This year, number of candidates are very, very less as compared to last year. Number of candidates could not appear in examination due to one reason or another. Less number of candidates applied this year. Then some people say the systems were slow at their center. Certain people encountered other problems. So anything can happen. Game is wide open. What is my expectation of cutoff, that I will discuss in a video that I will upload around 8 p.m. today. I am gathering the more and more data. Already I have got more than 6,000 data, candidate data. I think by evening it will go up much higher. Higher is the data, better is the synthesis. We will be able to lay hand on a reasonable cutoff for general candidates, and accordingly you can decide what can be the fate of other candidates. But my advice to each one of you, don't feel sad. Be cheerful. You are in race. Cutoffs can be low. So focus on study. 3 beautiful weapons I have given you. Take these weapons. Prepare for war. One is good mock test. Link is available in description comment column. Subscribe annual plan. Second, good current affairs source. Link is available in description. Subscribe it. Third, banking awareness videos. Link is available in description. Watch 10 videos daily. So if you go on these ways, you will be victorious. Don't let down yourself. Don't feel sad. The cutoff can be surprisingly low this year. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. अब किसी ने 50 किए, किसी ने 55 किए, किसी ने 60 किए, किसी ने 65 किए. सबका एक ही प्रश्न है, सर क्या मैं मेन के लिए तैयारी करूं? और मेरा उत्तर एक ही है, हाँ आप मेन के लिए तैयारी करें. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इस साल का आपका एग्जाम 2017 की तरह है.
2017 में भी मॉडरेट से टफ एग्जाम आया था। तो हम देखें उस साल कट ऑफ क्या रहे थे। कट ऑफ रहे थे SC 36, ST 28.5, OBC 42.25, जनरल 42.75। अब आप देखो कि ये तो अगर कट ऑफ इस साल आ गया तो नज़ारा आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और ये साल 2017 से कई मायनों में भिन्न है। 2017 में ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत नहीं थी, कोई सोशल मीडिया में इस तरह की रूमर्स नहीं फैलाई जा रही थी कि कोई एग्जाम नहीं होगा। लोग तैयारी कर रहे थे, शुरू से तैयारी कर रहे थे। इस साल तो कितने लोग बेचारे पढ़ ही नहीं पाए ऐसे लोगों की वजह से, जो लगातार एक ही बात कहते रहे, एग्जाम नहीं होंगे, एग्जाम नहीं होंगे, एग्जाम नहीं होंगे, एग्जाम नहीं होंगे। यही एक चैनल था जो कहता रहा एग्जाम होंगे होंगे होंगे। इतनी विकट परिस्थिति के बावजूद भी आप एग्जाम में बैठे हो। फिर एग्जाम टफ भी आ गया है, ट्रैवलिंग भी डिफिकल्ट है, कितने तरह के इक्विपमेंट्स के थ्रू गुजर रहे हैं, कितना मेंटल एगनी है कैंडिडेट्स के साथ। फिर बेरोजगारी चरम सीमा पे है, दूसरी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिल रही हैं। ऐसे माहौल में भी आप एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, तो देखिए ना आप कितनी विकट स्थिति से आप गुजर रहे हैं। फिर क्यों निराश होने? जो भी आप कर रहे हैं आप रेस में हैं, आप रेस में हैं। जो ये बातें कर रहे हैं 70 कट ऑफ होगा, 75 कट ऑफ होगा, 80 कट ऑफ होगा, वो बिना मतलब के लोगों के अंदर निराशा की भावना पैदा कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ऐसे बातें नहीं होनी चाहिए। कट ऑफ कोई नहीं बता सकता। मेरी कोशिश होती है आपके अंदर आशा का संचार करना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना, आपको सही दिशा में लगाए रखना। क्योंकि आपको तो हो सकता है एग्जाम में बैठना ही पड़े मेंस के, और अभी से आप निराश होकर बैठ गए तो फिर तो आप तैयारी नहीं कर पाओगे। तो जो भी आपकी अटेम्प्ट है कमेंट कॉलम में बताइए। काफ़ी आंकड़े हमारे पास आ गए हैं, बाकी आंकड़ों का मैं इंतजार कर रहा हूँ। 8 बजे के करीब मच अवेटेड वीडियो लाइकली कट ऑफ की मैं आपके लिए डालूंगा, उसको आप जरूर देखिए। पिछले 2 दिनों की ऑलरेडी कट ऑफ की वीडियो मेरी उपलब्ध है, 3 अक्टूबर वाली भी, 10 अक्टूबर वाली भी, उसको भी देख लीजिए। और मेरे बताए 3 वेपन्स को आप ले लीजिए और युद्ध की तैयारी शुरू कर दीजिए। पहला है अच्छा मॉक टेस्ट, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट कॉलम में दे दिया है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा अच्छा सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स, उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। 190 वीडियो की प्लेलिस्ट, 10 वीडियो रोज की देख लीजिए और खुश रहिए। बिल्कुल भी परेशानी में जाने की जरूरत नहीं है। काफ़ी लोग कह रहे हैं सर मैं डिप्रेस हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं बेचैन हूँ। इन चीज़ों से बाहर निकल जाइए, कुछ नहीं मिलेगा इन चीज़ों में। लोग बातें करते रहेंगे मगर आपको आगे निकल जाना है। आप एक अच्छे चैनल के सब्सक्राइबर हो, आप चिंता मत लगाओ। बहुत सरप्राइजिंगली कट ऑफ आएंगे। जब मैंने 2017 के आपको निकाल के दे दिए, 2012 से मैं बच्चों के संपर्क में हूँ और सारे एग्जाम्स के मैंने कट ऑफ देखे हैं और ऐसे ऐसे कट ऑफ हुए हैं जो कि बहुत ही मॉडरेट होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। बेकार की चिंता मत लगाओ। अगर आपको देखने हैं वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, पुराने आप चेक कर लीजिए। बहुत कम कट ऑफ्स है, इतने हाई कट ऑफ होते नहीं है। ये कहना आसान होता है 70 कर लिया, 80 कर लिया, 90 कर लिया। अरे वो सारे ठीक थोड़ा ना होते हैं क्वेश्चन। जब हम एग्जाम देते हैं कुछ क्वेश्चन हमारे ठीक होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं। तो कई बार आपने कम अटेम्प्ट किए होते हैं, आपके एक्यूरेट होते हैं, आपके नंबर अच्छे आ जाते हैं और आप अगले चैनल पे बैठ जाते हो। ठीक है ना? तो अपनी तैयारी करते रहिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको फॉलो करिए, आपको फायदा होगा। जब रिजल्ट आएगा आप लोग ही मेरी तारीफ करने वाले हो कि सर आप ही हो जो सही बोलते हो। तो गॉड ब्लेस यू ऑल।